Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. First pause this video, try the set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now, सेट को अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको पहले तो तीन टेबल दिखेगा. तीन टेबल देखते ही मे बी आपको लगने लगेगा कि हाँ दिस इज वेरी डिफिकल्ट. अप फ्रंट में देखोगे तो हाँ मे बी देर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स, तो उस बेस पे हम सोच सकते हैं कि दिस कुड बी डिफिकल्ट. बट आइडियली वी शुड अंडरस्टैंड हाउ द सेट इज एक्चुअली फॉर्म. नाउ दिस सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जैक्टली दिस सेट वॉज देयर इन कैट 2016. ठीक है, पेपर्स आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे. This is a memory based set, but this is a rating based set. If you ask anyone who gave CAT 2016, so he or she would tell कि हाँ this is one of those difficult set उस exam pressure में, because you have to crunch a lot of numbers. But the main part of this particular set will become how you represent all the data, right? So you have three different tables. You have to make a consolidated table out of this. Not a lot of information is given condition wise. It's all about the numbers and how you create a linkage between them, right? So first let's start reading this particular set. So this says four experts E1, E2, E3 and E4 rated three features F1, F2 and F3 each for two products P1 and P2, giving integer ratings from 1 to 10. So these are the numbers visible. Table 1 lists a triplet each comprising minimum, average and maximum rating for each feature across products. So for example, P1 प्रोडक्ट में F1 फीचर में, राइट, P1 प्रोडक्ट F1 फीचर, द मिनिमम रेटिंग इज 3, द मैक्सिमम रेटिंग इज 9 एंड द एवरेज रेटिंग इज 6.5 बाय द फोर एक्सपर्ट्स, राइट. सो 6.5 इज द एवरेज. सो बेसिकली वी कैन फिगर आउट द टोटल सम आल्सो. सो 6.5 into 4, right? So this first table says that. The second table, table 2, lists the minimum maximum rating given by each expert to each individual product across फीचर्स. सो ये फोर एक्सपर्ट्स है और F1 में उन्होंने एक बार P1 में रेटिंग करी होगी एंड F1 फीचर में P2 पे रेटिंग करी होगी. सो दिस 6 इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ देम. तो अगेन बिकॉज ये एवरेज है ना, तो आप उन दोनों वैल्यूज का क्या बता सकते हो, सम बता सकते हो, राइट. विल मेक अ टेबल आउट ऑफ दिस, विल अंडरस्टैंड दिस अगेन, बट दैट इज हाउ द टेबल 3 looks like. Sorry, this was table 3, right? Table 3 gives the information. So we're reading about table 3. Table 3 lists the average of ratings given to each feature by each product across, by each expert across products. So again, product wise, even ने F1 feature दो products पे दिया है, P1, P2 as I explained, तो उनका average is 6. हाँ, table 2 lists the minimum maximum rating given by each expert to individual product across features. So for example, E1 expert ने P1 जो आपका प्रोडक्ट है उसमें मिनिमम रेटिंग आपका 3 दिया हुआ है एंड मैक्सिमम रेटिंग आपका 7 दिया है. नाउ लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन टू यू हाउ अ कंसोलिडेटेड टेबल विल बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस. तो व्हाट यू कैन डू इज, आपके पास क्या है, चार एक्सपर्ट्स है. लेट्स से राइट E1, E2, E3 एंड E4, right? So let's say हमने चार experts डाले. Now we have two products. The four experts are giving ratings to both the products. So एक side आप P1 कर लो और एक side आप क्या कर लो, P2 कर लो. Now for these two products, the ratings are given on three features, that is F1, F2 and F3, and on a similar basis for P2 product as well. So F1, F2 and F3. Now we can simply make a table out of this, right? I am drawing a rough diagram. We'll make a next table more clearly, but this is how you are actually going to represent your data. And यहाँ पे अब आप इन तीनों टेबल का अगर आप जैसे समझो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कैसे होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस टेबल 1, तो P1 प्रोडक्ट, राइट. सो P1 प्रोडक्ट एंड F1. सो P1 प्रोडक्ट एंड F1 इज बेसिकली दिस कॉलम. तो इस कॉलम में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको कैसे वैल्यूज रीड करनी है. इसमें मिनिमम वैल्यू क्या जाने वाली है, 3 जाने वाली है. मैक्सिमम वैल्यू इस कॉलम में क्या जाने वाला है, 9 जाने वाला है. एंड बिकॉज द एवरेज इज ऑल्सो गिवन द 6.5, तो बेसिकली वी नो 6.5 into 4 would be 26. So 26 would be the sum of the four numbers in this particular column. So this is the use of this table 1. How do I give the information for table 2? Table 2 में क्या था, E1 expert, right? So E1 expert P1, राइट, E1 एक्सपर्ट P1, इन तीन वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू आपकी 3 रही होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपका 7 रहा होगा. सो दिस इज हाउ दिस टेबल एक्चुअली बी हैज टू बी रिप्रेजेंटेड. व्हाट अबाउट टेबल 3? टेबल 3 में E1 F1 एवरेज 6. सो फॉर एग्जांपल E1 में F1 प्रोडक्ट्स, F1 फीचर दोनों प्रोडक्ट में थे, राइट. दिस वैल्यू
and this value. So basically this 6 is actually the average of these two ratings. So इन दोनों का sum total कितना रहा होगा? 6 into 2, obviously that is 12. So that is how the tables have to be read, right? So I hope you have got the first part of this. So जैसे आपने इस टेबल का इंटरप्रिटेशन बहुत क्लियरली समझ जाते हो, द सेट इज नॉट टू डिफिकल्ट, इट इज ऑल अबाउट क्रंचिंग द नंबर्स. थोड़ा बहुत आपको इनके बीच में रिलेशंस देखना आना पड़ेगा. नाउ लेट्स एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग. सो आई हैव मेड अ नीड टेबल आउट ऑफ दिस. अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. नाउ ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज में जहाँ पे आपको नंबर्स फिल करने होते हैं ग्रिड्स में, you obviously start with the highest numbers or the lowest numbers, right? So these are two good numbers to start off with because उनकी possibilities कम रहती हैं. So what are the highest numbers? 1 to 10 की इंटीजर रेटिंग थी, तो मेरे को सबसे पहले तो ये 10 दिख रहा है दोनों जगह, राइट? सो स्टार्ट करते हैं इन्हीं से. E4 expert, राइट? E4 expert is this row. E4 expert ने P1 प्रोडक्ट, तो P1 प्रोडक्ट इज दीज 3 वैल्यूज. इनमें से कहीं पे आपका क्या दिया हुआ है? एक मैक्सिमम रेटिंग 10 दिया हुआ है, तो इन 3 जगह पे कहीं पे 10 दिखना चाहिए. अब मैं क्या करता हूँ, ये 10 कैसे फिट होगा वो मैं चेक करता हूँ इस टेबल 1 से. इस टेबल 1 में अगर आप नोटिस करो, P1 प्रोडक्ट में F1 फीचर में तो मैक्सिमम ही 9 है, तो यहाँ तो 10 नहीं आ सकता. P1 में F3 में भी आपका मैक्सिमम 9 है, तो यहाँ पे भी 10 नहीं आ सकता. तो E4 ने ये जो P1 में 10 रेटिंग दिया होगा वो कहाँ दिया होगा? जहाँ 10 अलाउड होगा, दैट मीन्स दिस 10. सो दैट मीन्स E4 ने P1 वाले प्रोडक्ट में 10 रेटिंग कहाँ दिया हुआ है? F2 वाले प्रोडक्ट पे. सो दिस हैज गॉट टू बी 10, राइट? सो ये 10 प्लेस हो गया. व्हाट अबाउट दिस 10? सेम लॉजिक से प्रोसीड कर सकते हो. तो E4 P2, सो E4 P2, इन 3 में कहीं पे 10 देखना है. अब देख लो आप कहाँ पे 10 आपका आ रहा है P2 प्रोडक्ट में. तो P2 में अगर आप नोटिस करोगे, इन दोनों में मैक्सिमम 9 और 8 है रिस्पेक्टिवली. सिर्फ मैक्सिमम आपका 10 यहाँ गया, तो उसी में अलाउड होगा. दैट मीन्स F1. सो दिस हैज गॉट टू बी 10. बहुत सिंपली फिल हो गया. नाउ आई कैन नाउ यूज दिस थर्ड टेबल, और एक बार आप यूज करोगे ना तो आप इसको बार बार रियलाइज करोगे. दिस विल मेक योर टास्क इजी. अगर आपको एक भी सेल का नंबर मिलता है ना, तो इधर वाले करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले प्रोडक्ट में आपको सेम नंबर मिल जाएगा, ठीक है? दूसरा नंबर मिल जाएगा. कैसे? जैसे E4 में अगर आप नोटिस करो, E4 में F1 में एवरेज क्या है? 9.5. तो E4 में एवरेज F1 और इस वाले F1 का होगा ना, तो दो ही तो नंबर है. आपको अगर एक भी नंबर पता चल रहा है, आपको हमेशा सम तो इस टेबल से मिल ही जाएगा, तो आप दूसरा नंबर तुरंत से बना सकते हो. फॉर एग्जांपल दिस इज 9.5. 9.5 का डबल वुड बी 90. सो इफ दिस इज 10, दिस हैज गॉट टू बी 9, तभी 19 का आपका समय होगा. सो ये 9 फिल हो गया. ऑन अ सिमिलर बेसिस इस F2 के लिए काम कर लो. तो E4 का F2 टोटल आपका 9 एवरेज है, तो 18 सम बनेगा. बिकॉज ये 10 है, तो दिस हैज गॉट टू बी 8 फिल हो गया. नाउ व्हाट अबाउट E4 का ये रिमेनिंग वाला? तो आप ऐसे चेक करो, E4 ने P1, ये सेकंड टेबल आप यूज कर सकते हो. E4 ने P1 में मिनिमम मैक्सिमम वाला इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, तो E4 ने P1 वाले फीचर में, P1 वाले प्रोडक्ट में, सॉरी, E4 ने P1 वाले प्रोडक्ट में मिनिमम मैक्सिमम 6 एंड 10 दिया हुआ है. 6 एंड 10 में 10 तो आपने लिखा हुआ है, 6 कहीं पे भी नहीं लिखा है. दैट मीन्स दिस हैज गॉट टू बी 6. अब बिकॉज ये 6 है, तो आप ये थर्ड टेबल यूज करके इसको फिल कर सकते हो. या फिर आप एक्चुअली में अगर इसको भी देखोगे, तो E4 ने P2 में 7 to 10 की रेंज में वैल्यूज में रेटिंग दी हुई है. तो E4 P2, सो E4 में P2 7 to 10 आना चाहिए, तो कहीं तो 7 आएगा. 7 इज द ओनली थिंग दैट हैज टू बी रिटन हियर, 6 and 7. तभी आप नोटिस करोगे ये भी सेटिस्फाई हो रहा है आपका 6.5, बिकॉज 6 + 7 is 13, 13/2 is 6.5. so that is also satisfied. So this row is completely taken care of. Now how do we proceed further? अब मेरे को देखो 10 तो दिख नहीं रहा है. There are a lot of 9s, there are a lot of 8s. So maybe उनके थ्रू हम प्रोसीड नहीं करना चाहेंगे. We'll take the least possible now. एक हाईएस्ट आपने 10 के अराउंड बना लिया, फिट भी हो गया. Let's check for 1 कि कहाँ पे फिट हो सकता है. इससे स्टार्ट करते हैं. तो E2 ने P2 में कहीं पे 1 दिया हुआ है, राइट? सो E2 ने P2 वाले में इन 3 जगह पे कहीं ना कहीं 1 आना है आपका. आओ इसमें चेक करते हैं कि 1 कहाँ पे है मिनिमम के साइड में. सो अगर आप नोटिस करो P2 वाले फीचर में यहाँ पे मिनिमम ही 8 है, सो नॉट अलाउड. यहाँ पे मिनिमम 4 है, ओके, नॉट देयर. दैट मीन्स P2 वाले प्रोडक्ट में F3 फीचर में ही 1 आ सकता है. सो E2 ने P2 में जो ये 1 दिया होगा वो कहाँ पे दिया होगा? आपका F3 में दिया होगा. नाउ बिकॉज आई हैव दिस 1, आई कैन फिगर आउट दिस नंबर एज वेल, बिकॉज E2 F3 का एवरेज 5 है. दैट मीन्स सम कितना होना चाहिए दोनों प्रोडक्ट्स वाइज?
10 होना चाहिए, तो वो ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, राइट। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इस टेबल में अगर आप नोटिस करो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, इस 9 में अगर मैं E2 में काम करना स्टार्ट करूं, कैन आई डू दिस, 4 and 9 आपका रेंज है, आई कैन नॉट से द वैल्यूज राइट, 1 and 8, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या कर सकते हो यहाँ पे, जैसे अब आप इस, अगर आप नोटिस करो, देखो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कहाँ पे निकल गई आपकी, मे बी इस कॉलम पे हम थोड़ा आना चाहेंगे, बिकॉज इस कॉलम में आपको 2 वैल्यूज पता है, 2 रिमेनिंग है, सेम फॉर दिस P2 एंड F3 वाला कॉलम। सो लेट्स गो टू दिस टेबल, टेबल 1। अब टेबल 1 में अगर आप P1 में F3 के अराउंड सोचना स्टार्ट करो, P1 में F3, दिस वैल्यू, दीज वैल्यूज 2 and 9 आर द मिनिमम मैक्सिमम एंड 5.75 है आपका, राइट, 5.75। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ये नोटिस करते हैं कि इन पूरे कॉलम में जो 4 नंबर है उनका सम तो निकल ही आएगा, क्या आएगा 5.75 इंटू 4, सो 0.75 इंटू 4 इज 3 एंड 4 इंटू 5 इज 20, सो 23 आपका इस पूरे कॉलम का सम होना चाहिए, राइट। इसमें आपको पता है 9 and 6 आप लिख चुके हो, और एक जगह आपका कहीं ना कहीं 2 जाएगा, दैट इज अ मिनिमम। तो आपका जो फोर्थ वैल्यू होगा उसकी वैल्यू आप फिगर आउट कर लोगे ना, कितना हो जाएगा 9 + 6, 9 + 6 15, 15 + 2, 15 + 2 is 17 and 23 - 17 is 6। दैट मीन्स इन 2 रिमेनिंग वैल्यूज में से एक वैल्यू आपकी 2 होने वाली है और एक वैल्यू आपकी 6 होने वाली है, सो आई कैन सिंपली राइट देम हियर 2 या 6, या फिर यहाँ पे 6 and 2, राइट। सेम लॉजिक से यहाँ पे P2 में F3 में भी मैं सेम काम करूँ, तो P2 एंड F3 इसमें भी एक्चुअली में सम तो सेम ही बनेगा, 5.75 इंटू 4 दिस इज 23। इसमें अगर आप नोटिस करो 7 + 1 8 है, एक जगह आपका, अब यहाँ पे 1 और 8 की रेंज है, राइट, सो एक आपका 8 आना बाकी है, द हाईएस्ट नंबर, 7 + 1 इज 8, 8 + 8 is 16, 23 - 16 would be 7, that means the remaining 2 values would be, one is 8 and the remaining would be 7, so 8 और 7 आना बाकी है, so if I let's say just write them in any order 7 8 8 and 8 and 7, तो अब मैं यहां से चेक करूंगा कि ये वाला टेबल मेरा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, फॉर विच वैल्यूज, राइट। सो आई विल इरेज द अदर नंबर जो नहीं फिट हुआ। सबसे पहले E1 में F3, सो E1 में F3 का एवरेज कितना है 7 है, तो टोटल सम कितना बनना चाहिए आपका 14 बनना चाहिए। सिर्फ आप यहाँ पे चेक कर लो E1 में F3 में कौन सा कॉम्बिनेशन इन नंबर्स का 14 बनाएगा, दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट। तो आप सिंपली नोटिस करोगे देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज 6 and 8 इन दैट ऑर्डर, अगर फिट होगा तभी आपका 14 बनेगा। सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पे आपका 8 बचेगा, एंड बिकॉज यहाँ 6 बचेगा तो फिर यहाँ से 6 हट जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, एंड बिकॉज यहाँ पे 8 रखा है तो यहाँ से 8 हट जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, सो दिस इज ऑल्सो डन, राइट। सो ये हो गया अपना। नाउ वेयर डू वी गो नेक्स्ट, अब वही है, आपको टेबल्स वगैरह थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा कि कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू इज, जहाँ पे ना, जैसे इनमें अगर मैं नोटिस करूँ, जैसे ये वाला टेबल 2 में कि कौन से आपने वैल्यूज मतलब नहीं लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब मिनिमम मैक्सिमम ऑलरेडी आपने नहीं लिखा है क्योंकि आपको एक पूरा का पूरा कॉलम पता है, इन दोनों में अगर वही दोनों वैल्यूज फिट होंगे ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो E1 का बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को, राइट। E1 का P1 या E1 का P2 दोनों साइड देखेंगे हम, E1 के P1 में मिनिमम मैक्सिमम 37 यूज होना है। अब अच्छी बात क्यों है और इसी से क्यों स्टार्ट करा है मैंने, क्योंकि एक वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए, इससे क्यों स्टार्ट करा मैंने, क्योंकि मेरे को एक चीज़ ये दिख रही है कि E1 में जो मैंने थर्ड नंबर लिखा है इस रो का, P1 के प्रोडक्ट में जो 3 फीचर्स में एक नंबर लिखा हुआ है 6, ये इसमें नहीं है ना। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ये जो दोनों आपके ब्लॉक्स हैं, ये दोनों सेल है E1 वाले रो में, इन दोनों में भी 3 और 7 तो किसी भी ऑर्डर में जाना ही जाना है, राइट, 3 7 7 and 3। सिमिलरली E1 में P2 में अगर आप देखो, E1 में P2 में तो 4 and 9 मिनिमम मैक्सिमम, आपने तो 8 लिखा हुआ है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों ब्लॉक में 9 and 4 and 9 इन एनी ऑर्डर जाएगा। ये काम मैंने E2 के साथ इसलिए नहीं करा बिकॉज E2 में आपने 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 9 ही है, तो एक ही नंबर आपको 4 पता चलेगा, दूसरा नंबर नहीं पता चल पाएगा। एंड द सेम लॉजिक अप्लाइज टू E3 एज वेल। आपने 2 and 9 का मिनिमम मैक्सिमम देखा, लेकिन 2 तो आपने लिख दिया है, तो एक ब्लॉक में ही तो आपको नंबर 9 पता चलेगा, दूसरे का नंबर एटलीस्ट नहीं पता चलेगा। दैट इज वाई E1 हमने एक्चुअली में पिक करा है। नाउ अगेन मैं सेम काम करूंगा जो इससे पहले वाले नंबर को फिगर आउट करते टाइम पे मैंने किया था। क्या, मैं इस थर्ड टेबल को देख लूँ,
तो थर्ड टेबल में अगर आप नोटिस करो E1 का F1 का एवरेज कितना है 6, तो सम कितना बनना चाहिए 6 का डबल दैट इज 12। अब आप बस ये देख लो E1 में F1 में कौन से नंबर का कॉम्बिनेशन आपको 12 बना के देगा। सो 3 4 3 9, 3 9 इज एक्चुअली देयर, और 7 के साथ ना 7 4 बैठेगा ना 7 9 बैठेगा 12 के लिए। दैट मीन्स अब मेरे को मिल गया कि 12 अगर मेरे को बनाना है तो यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे 9 रखेंगे, एंड बिकॉज यहाँ 9 और यहाँ 3 रखा तो यहाँ 7 बचेगा, और यहाँ पे आपका 9 रखा तो यहाँ पे आपका 4 बचेगा। सो दिस इज ऑल्सो डन, राइट। सो ये हो गया आपका। अब क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे अब आप यहाँ स्टार्ट करो मे बी इस F2 वाले कॉलम को देखना इन दोनों साइड, मे बी यू कैन डू दैट। तो P1 में F2, तो P1 में F2 अगर आप नोटिस करो वही सेम लॉजिक, थोड़े देर पहले हमने इसको एक्चुअली लगाया था। तो P1 में F2 में मिनिमम मैक्सिमम आपको 4 and 10 पता है और आपको एवरेज 6.25 पता है। तो व्हाट आई कैन से इज बिकॉज आपका एवरेज 6.25 है इस पूरे कॉलम का P1 F2 वाले का, तो 6.25 इंटू 4 करा कितना आया 25 इस पूरे कॉलम का सम होना चाहिए, राइट। नाउ इस 25 में से 7 + 10 इज ऑलरेडी देयर, दैट इज 17, कितना बचा आपका 8 बचा। अब जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज हैं जिनका सम 8 है उसमें से एक वैल्यू आपकी 4 है, गारंटीड है क्योंकि मिनिमम लिखा हुआ है कि आपका 4 है। तो 8 आपका बनना है जिसमें से एक वैल्यू 4 है, तो ऑटोमेटिकली वी कैन से कि अदर वैल्यू वुड आल्सो बी 4, राइट। दोनों ही वैल्यू आपकी 4 होने वाली है, तो यहाँ दोनों जगह में क्या लिख सकता हूँ 4 फॉलोड बाई 4, एंड बिकॉज यहाँ 4 लिखा है तो यार अगेन ये वाला नंबर तो बहुत इजीली मिलने वाला है। कैसे, ये 4 है, E2 का F2 देख लो बस, E2 का F2 कहाँ से देखते हैं, थर्ड टेबल 6 का डबल इज 12, तो ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगेन यहाँ 4 है और यहाँ का कौन सा हुआ E3 का F2, सो E3 का F2 6.5 इज डबल दैट इज 13, सो ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो डन। अब बहुत थोड़ी सी आपकी टेबल बची है फिल करनी। अब क्या कर सकते हो आप, E3 को देख लें, E3 का मिनिमम एंड मैक्सिमम देख लो। यस, E3 का मिनिमम मैक्सिमम P1 साइड में कितना है 2 and 9, सो 2 तो आपने लिखा हुआ है, 9 लिखना बचा है तो ऑटोमेटिकली 9 यहाँ पे आएगा। सिमिलरली E3 का P2 में 7 और 9 मिनिमम मैक्सिमम आपने दोनों लिखा हुआ है, बट जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने 9 इधर फिल कर लिया है, बिकॉज ये 9 आ गया तो ये वाला नंबर तो इससे आ जाएगा इस वाली टेबल से, राइट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेट। आपको बस एक बार लिंक समझ में आया ना, यू कैन जस्ट गो बैक एंड फोर्थ बिटवीन ऑल द टेबल्स एंड फिल ऑल द डेटा। सो E3 का F1 वुड बी 9 का डबल वुड बी 18, सो ये 9 है तो दिस ऑल्सो हैज टू गिव अ 9 फॉर दैट 18। नाउ व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, ये तो हम इसी टेबल से निकाल सकते हैं बिकॉज F1 का मेरे को पूरा सम पता चल जाएगा ना इस कॉलम का इस वाले से। तो बस आप P1 में F1 देख लो, P1 में F1 कितना है 6.5 इंटू 4 कितना हो गया 26, राइट। अब 26 ये है, इसमें मैं सीधे इस कॉलम के एडिशन में क्या रिमेनिंग वैल्यू वो देख लेता हूँ। तो 9 + 9 इज 18 + 8 21, 26 - 21 वुड गिव अस 5। इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे इस वाले टेबल से। एंड सिमिलरली P2 में F1 9 इंटू 4 इज 36 बनना चाहिए। सो 9 9 18 एंड 10 इज 28 के बाद आपका 36 बनाने के लिए 8 आना पड़ेगा, तो दिस हैज गॉट टू बी 8। अब E2 का F1 में बस चेक कर लो, E2 का F1 में हमारे हिसाब से 13/2 6.5 आ रहा है, इज इट 6.5? यस, सो वी डन। बस दैट इज द एंटायर सेट टू बिगिन फिनिश ऑफ इट, एंड इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेट्स डू द प्रॉब्लम्स। हाउ मेनी पॉइंट्स E2 गिव्स टू P1 इन F2? सो E2, P1 and F2, so the answer would be 4. So answer for the first problem would be 4, E2 P1 F2, E2 P1 and F2 race. Second problem, how many points E3 P2 F3? So E3 then P2 in F3, so this would be 7. So the answer to the second problem becomes 7, right? So E3 and P2 and F3, so that has to be 7. Then what is the average of the rating given by E1 to P1 in all the three features? तो E1 to P1 in all the three features, इनका एवरेज निकालना है तो सिंपल ऐड करके डिवाइड बाई 3।
सो कितना हो जाएगा 7 + 3 10 and 10 + 6 16 by 3. So this would not have been a theta problem obviously, right? So this is not going to give me a exact decimal obviously. So 16 by 3 is the answer to the third problem, E1 P1, right? E1 and P1. Fair enough. Then fourth problem, what is the sum of all the ratings given by E2? What is the sum of all the ratings given by E2? So इन सारे values को basically आपको add करना है. So 5 + 4 9 + 9 is 18. इस साइड आपका 18 हो गया और इधर कितना हो गया 8 + 8 + 1 to 8 16 + 1 17. So 17 + 18 would give me 35. So the answer to the final problem is actually 5. Right, so I hope you have understood this set. This was a interesting set. I would say a little towards a difficult side in an exam like scenario, because there is a lot of pressure. You have to very much understand how the data is linked together, and then you have to make a consolidated table out of this, right? So again, if you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.